स्टार्ट करते हैं. करो Start. स्टार्ट. So we spoke about spiritual awakening yesterday. So can you please touch down that point? What exactly is spiritual awakening, and when does a person experience that specifically? Awakening is more like कि spiritual awakening, just to break down that whole meaning behind the word, it's like कि आत्मा का जागरण. Hmm. You realize कि you have a soul, basically. You realize कि there is a demand which is coming from the soul. Early your life, so before that event, you are mostly looking after your biological need. But now you realize that there is a soul need also. Soul also needs something from you. And that realization is so heavy that you can't really handle it in a right way. You don't have any idea ki what is this thing all about. It's more like ki a lot of things which are there in the soul, which are which soul really wants, has a direct relationship with your heart in a way. So your heart is the gatekeeper. The Hmm. heart is a gatekeeper to the soul. Hmm. When the heart is clean and when heart is open, you will always connect with your soul. ऐसा मान के चलो. बट जितना उस गेट को बंद करोगे और उस पर ताले लगाओगे बहुत सारे, ऐसा मानो कि आपने हजारों ताले लगा के रखे हैं अलग अलग टाइप के, और सारे ताले इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू unlock basically. That kind different kind of locks you have put in that gate of which gate around your heart, and when you open the gate, then you can meet the soul basically. So आपको सारे ताले खोलने पड़ेंगे. तो यहाँ पे क्या सारे ताले एक साथ खुल जाते हैं. जब एक साथ खुल जाते हैं, इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग बेसिकली, बिकॉज यू रियली डोंट नो कि व्हाट इज द कंटेंट बिहाइंड ऑल दोस डिफरेंट ताला बेसिकली. हर ताला कुछ ना कुछ होल्ड कर रहा है. सर देयर इज अगर लॉट ऑफ. अगर आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का इवेंट सीरीज ऑफ इवेंट एक्सप्लेन करना होगा, सो हाउ डिड लुक लाइक? So it's like say, all kind of different locks I am seeing. It's a lock on your heart, and these locks are placed by society in a way, because we are part of the society. So it's like कि whatever whenever you were having uh, some sort of demand coming from the heart to express something which seeks like कि you really wanted to do something by your own, or maybe कुछ ऐसा है कि like you wanted to do something by your own, something which you really like to do basically. But there is a joy coming within you, and you feel like this is something I really want in my life. It could be anything. It could be something which is not even accepted by the larger part of the society. It should be something where your family is also not getting that point. Why you really want to pursue that particular thing. So mostly growing up, like, so career wise we have a major wound basically. The major जो लॉक लगता है career wise ये ज़्यादा लगता है कि while growing up we have our own interest basically, our own interest, our own passion, our own some of those things which we really like to do more and more. Some of those things where we spend more time, we feel like we are losing the track of time. हमको बहुत मज़ा आता है कुछ चीज़ें करने में while we are growing up, जब हम बच्चे होते हैं. जितना उन पे लगाम लगाई जाती है, इस लगाम इसकी, यू शुड नॉट डू इट मोर एंड मोर बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच विल मेक यू सक्सेसफुल. So that part of thing basically. So it is everywhere. A lot of people who really like to play sports, a lot of bache who really like to roam around, a lot of bache who really like to do some creative art, a lot of bache they really want to like to dance. उनको उस वही करने में मजा आता है. इफ़ यू जस्ट अलाउ देम कि तुम डांस करो 4-5 घंटे, स्कूल मत जाओ, वो डांस ही करेंगे. Hmm. बट फिर उनको डांस ना करके बोलते तुम स्कूल जाओ और एक पर्टिकुलर तरीके से जो हम आपको टीचर आपको जो सिखा रहे हैं वो सीखो. आपका इंटरेस्ट नहीं फिर भी सीखो, क्योंकि दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू. बिकॉज आप ऐसा करोगे तो आप सक्सेसफुल बंदे बन जाओगे. आगे जाके यू विल मेक मोर मनी, यू विल हैव मोर कंफर्टेबल लाइफ. एंड पेरेंट्स आर ऑलवेज, सो इट्स ए हैज बेसिकली. किड्स आर काइंड ऑफ हैज फॉर पेरेंट्स इन ए वे, because somehow parents always think कि whenever we become older and when we'll lose the ability to make more money, there is a certain age also. We can 50-60 साल रिटायरमेंट के बाद Hmm. फिर how do you survive basically? You should have something where you should create dependency basically. So it's more like कि they always feel कि now your kids are dependent on you, and after a few years, whenever you make them good in their life, when they achieve more success and when they have more resources in a way, then they can take care of you pretty well basically. So it's a kind of Agreement. whatever they are doing, because they're really seeking something out of it, like Hmm. whatever they are doing.
Even it's a sacrifice. It is not an unconditional sacrifice. Even a lot of parents they say कि मैंने ये sacrifice किया, ये किया, वो किया. और उनके by default subconsciously they always looking for something कि ऐसा हम्म, होगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. मैं अचीव नहीं कर पाया, हाँ मेरा बेटा कर हाँ. पाएगा मेरे और लिए। कुछ लोग ऐसा होता है कि उनके खुद के ड्रीम वो पूरे नहीं कर पाते हैं और वो चाहते हैं बच्चे पूरे करें. ये भी कई बार होता है. तो फोर्सफुली दे ट्राई टू गेट किड्स इनटू दोज स्ट्रीम्स जहाँ पे दे हैड नो इंटरेस्ट बिकॉज बट उनके जो माँ बाप को वो चीज़ करनी थी और वो उनका पैशन था, उनका इंटरेस्ट था, बट वो कभी फुलफिल नहीं कर पाया क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अलाउड नहीं किया. अब वो चाहते हैं बच्चे वो करें. बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी युवराज सिंह। युवराज सिंह, हाँ, वही वही एग्जाम्पल कह सकते हो. तो इस तरीके से दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. हम्म, सो यू हैव अ लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स विच केप्ट हैपनिंग इन योर लाइफ. स्मॉल लाइक स्कूल्स में भी टीचर्स, अब अभी स्कूलिंग का सिस्टम भी आप देखोगे तो टीचर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी सेलेक्टिव इन वे कि दे सो दे इफ दे आर 50 किड्स बेसिकली स्कूल में तो टीचर्स जो होगा वो 4 या 5 बच्चों पे ध्यान देता है मेनली. उसका जो मेनली जो फोकस जाता है he always look for a result basically and he identify 4 5 talent. He try to nurture those talent more and more. 90% जो उसका पूरा concentration और focus जाएगा उनके ऊपर जाएगा क्योंकि they will bring result. हम्म, और बाकी जो बच्चे उस पर उतना ध्यान देता भी नहीं है. He हम्म, doesn't really care about कि वो बच्चे उनका क्या इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहता है. वो उनको फोर्स और करेगा, उनको ताने और सुनाएगा. जैसे कोई इंग्लिश का टीचर है, 4 बच्चों को इंग्लिश में इंटरेस्ट है नहीं, वो किसी और चीज़ में अच्छे हैं, तो बच्चे इंग्लिश में उनके नंबर कम आएंगे तो उनको बोलेगा, दे विल, वो शेम की फीलिंग वो ऐसा डेवलप करवाएगा कि यू आर नॉट वर्थ इट, क्या पागल आदमी है ऐसे. मतलब इस टाइप की बातें होती है, इस टाइप से बार बार आपको हिट किया जाता है तो आपको लगता है कि जो आप चाहते हो वो गलत है. मतलब यू देयर इज सेल्फ डाउट. हम्म, इससे सेल्फ डाउट इमर्ज होता है. जितना सेल्फ डाउट तभी इमर्ज होता है जब आपको लगता है जो भी आप सोचते हो या जो भी आपकी इच्छा है और जिस तरीके से आप जो भी लाइफ में आप जो करना चाहते हो आपकी लाइफ के साथ, इस लाइफ की आपकी एजेंसी को डाउन करना. हम्म, जितना आपकी एजेंसी, ह्यूमन तो एजेंसी पे चलता है ना, फ्री विल पे चलता है. वी हैव ए फ्री विल. हमको लगता है कि वी हैव ए फ्री विल. सो व्हेन यू आर बोर्न एंड यू हैव ए फ्री विल इनिशियली. हम्म, सो व्हाइल यू आर ग्रोइंग अप जो आपकी विल है वो कैप्चर कर ली जाती है. ऐसा मानो बच्चा होता है तो वो अपनी खुद की इच्छा से चलना सीखता है, खुद की इच्छा से क्राउल करना सीखता है, खुद की इच्छा से बोलना सीखता है. वो अपना टाइम लेता है भाई, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता. ऊपर वाला उसका टाइम डिसाइड करता है. उसका खुद का एक, he has his own way. He takes his own time. कुछ बच्चे 2 साल में चलना सीख रहे हैं, कोई बच्चे 1.5 साल में सीख रहे हैं, कोई बच्चा 3 साल में भी सीख रहा है. सबका अपना अपना टाइम लेके अपने आप कर रहे हो. जिसको जो करना है बच्चा कर रहा है. जैसे ही वो बड़ा हो गया, प्रोडक्ट बन गया सोसाइटी का, फिर जाके उसका मेंटरिंग और पेरेंटिंग सब चालू हो जाता है कि ऐसे करो, ऐसा करो, ये करो, ये करो, टोकना हम्म, चालू हो जाता है. हम्म, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो उसका इनिशियल जो, जब व्हेन ही वाज फ्री, नाउ ही इज नॉट फ्री एनीमोर. तो उसके बाद में क्या हो रहा है कि जब वो बड़ा हो रहा है तो ही इज लर्निंग फ्रॉम द सोसाइटी, ही इज बिल्डिंग न्यू पैटर्न्स. ही इज लर्निंग कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट. उसके पहले whatever he was holding, he was not aware about it, like, but he was holding some sort of data set. He was holding the data from the past life. बहुत कुछ उसके पास है subconsciously. He has been holding a lot of wisdom basically. That wisdom help him to learn to crawl. The wisdom help him to learn to walk also. कहाँ से आया, कैसे सीखा उसने? क्योंकि वो बार बार कर चुका है इसलिए वो कर हम्म, रहा है. समझ गए? इसलिए बच्चा बार बार कर पा रहा है. और इन्वायरमेंट से भी बच्चे सीखते हैं काफी कुछ. मतलब इस लाइक कि बच्चे ऑब्जर्व एंड देन लर्न, and they should be free to observe and then learn. And the observation, whatever observation they are making, it should be very unique to them. It's always a unique uh, expression of thought in a way. If they are looking into into a subject, object, whatever it is, they will think in a very different way. तो हम्म, वो different way of thinking is something उसको वो दबा दिया जाता है. हम्म, तो उसकी वजह से क्या होता है कहीं ना कहीं you are not able to express yourself fully or emotionally. Like हम्म, emotion plays your own role. आप ऑब्जर्व तभी कर पाओगे जब इमोशनली कनेक्ट हो उस चीज़ से. जब आप फुली कनेक्ट हो, जब यू आर फुली इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर एक्ट एंड योर हार्ट इज अलाइन. व्हेन योर हार्ट इज अलाइन विथ योर, व्हेन द हार्ट इज अलाइन विद द लॉजिक, इंटेलेक्ट, बुद्धि और दिल का जब समन्वय बनेगा, तभी तभी जाके यू कैन बी इन द फ्लो. तभी जाके यू कैन बी इन दैट स्टेट की जाके जहाँ पे यू कैन मेक सम डीप ऑब्जर्वेशन एंड यू कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट. यू कैन हम्म, ऑब्जर्व समथिंग ब्यूटीफुल आउट ऑफ इट. सब यूनिक पर्सपेक्टिव. यूनिक पर्सपेक्टिव तभी आ सकता है जब आपका हार्ट और आपका इंटेलेक्ट दोनों साथ में काम करे. अदरवाइज कभी आ ही नहीं पाएगा. समझ गए? हम्म, दैट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट. अब यहाँ पे हुआ क्योंकि अब आपके जो इमोशनल जो नीड थी या जो इमोशनल कोऑर्डिनेशन था इंटेलेक्ट के साथ, उसको इस तरीके से दबा दिया गया कि उसको साइड में कर दिया गया. ऐसा मानो, पहले ये मानो कि तो वो 3 चीजें हैं. आपका मन है, आपकी बुद्धि है और आपका हार्ट है. ये तीनों सिंक में चलते हैं. जब तीनों कोऑर्डिनेशन के साथ सिंक में चलेंगे तब कुछ आपकी लाइफ में यू विल डू अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स. लाइक यू विल कनेक्ट विद द यूनिवर्सल फ्लो. ये तीनों सिंक में चलेंगे तो तुम सोल से कनेक्ट हो जाओगे.
सोल से कनेक्ट होने के लिए तीनों को साथ में चलना जरूरी है, हम्म तीनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। लीडर कौन है? बुद्धि है। बुद्धि लीड करेगा, पर बुद्धि हार्ट को भी साथ में रखेगा और मन को अपने हिसाब से डिसिप्लिन में रखेगा। ये उसका सिंपल सा काम है। वो होगा तब जाके सोल का एक्सेस मिलेगा। जब सोल का एक्सेस मिलेगा तो भगवान से आप कनेक्ट हो जाओगे। फिर रास्ता अपना वो अपना आप ऊपर वाला जो भी उसका रास्ता होगा, जो भी आपके लाइफ का पर्पज होगा, वो आपको मिल जाएगा। आपकी लाइफ के पर्पज पे यू विल वॉक टुवर्ड्स इट, यू विल अचीव अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स, एवरीथिंग विल वेरी ग्रेट। एंड बिकॉज हार्ट इज कनेक्टेड, दैट इज वाई यू विल ऑल्सो फील जॉय। बिकॉज हार्ट हार्ट साथ में, जॉय तो वहां से आएगा, दिल से हम्म आएगा। मजा तो दिल से आएगा ना भाई। कोई भी काम करोगे, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, जब तक दिल आपके साथ कनेक्ट नहीं उस काम के, तो मजा कैसे आएगा? हम्म चाहे आप कितने सक्सेसफुल आदमी बन जाओ, बट आपका दिल आपके साथ नहीं है, यू आर नॉट कनेक्टेड विद दैट वर्क, मे बी यू आर मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर एंड यू फील लाइक दिस इज गुड, स्टिल इफ यू आर नॉट कनेक्टेड इन ऑन द हार्ट लेवल, तो मजा कभी आएगा ही नहीं। तब तो वो मन फिर आपको चला रहा होगा कि हाँ ऐसा करो तो आएगा मजा, ऐसा करो तो आएगा मजा, ये करो तो आएगा मजा। आपको लग रहा है मन आपको मजा देगा। मन आपको जो दिखा रहा है, सोशल प्रोजेक्शन जो हो रहा है, ही इज पुटिंग यू इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क एंड यू थॉट कि ये करने से ये होगा, ये करने से मजा आएगा, ये करने से मजा आएगा, तो वो कहाँ वो आपको बाहरी दुनिया में लेके जा रहा है। हम्म वो आपको बोला है कि मजा तो बाहरी दुनिया के अंदर है, बट मजा तो भीतर है। दिल से कनेक्ट होना मजा है। तो जो दिल से कनेक्ट होने का रास्ता है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि जब हम अपने दिल को एक्सप्रेस करने जाते हैं, जो हम इमोशन को जितना एक्सप्रेस करने जाते हैं, हमको अलाउ नहीं किया जाता वाइल ग्रोइंग अप, क्योंकि बाकी लोगों को लगता है कि उनके टेम्पलेट में वो चीज़ फिट नहीं हो रही। तो हम्म कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वो फिर दब जाती है। तो वो एक कब्र कब्र बन जाती है, कब्र बन हम्म जाती है, इमोशंस की ग्रेवयार्ड बन जाती है। काफ़ी जितने जितने आप बड़े होते जाते हो, उतनी ग्रेवयार्ड बन जाती है। तो से आई एम आर्टिस्ट, हाँ। सो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं आर्टिस्ट ना बनूं, हाँ। तो आई हैव लॉक्ड इट अप विद इन माई सेल्फ। एंड अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आर्टिस्ट नहीं बनूंगा। तो आई ट्राई टू फाइंड द सेम जॉय आउटसाइड, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, और आई ट्राई डिफरेंट थिंग्स। मन बोलता है You वो are करो, just ये trying to करो। escape, like you are हाँ। just like pretending, or you are just thinking ki, सो you are just seeing other people are happy by हम्म doing this and you thought it should be good for you, so you are just trying it. हम्म And because you are in the same company, so you are also हम्म having a same effect. It's हम्म an illusion. हम्म। It's So, just an illusion. so for me, the spiritual awakening would be me being an artist again and recognizing, okay, this is my purpose in life. I'm a better artist. Let me break out my old patterns and start doing painting again or नहीं something. नहीं, वो नहीं। अवेकनिंग इज मोर लाइक कि पहले जो दबा है वो बाहर आएगा। Hmm. पहले जो इमोशंस दबे हैं while growing up, जो भी इमोशंस, इमोशनल पैटर्न्स है, या जो भी इमोशंस जो एक्सप्रेस नहीं हो पाए, जो अनरिजॉल्व इमोशंस है, जो डिफरेंट इवेंट्स पे भी कई सारे डीप ऐसे इम्प्रिंट्स हार्ट के इमोशनल लेवल पे, यू हैव अ लॉट ऑफ डीप इम्प्रिंट्स आल्सो, वेर यू हैव वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ लॉसेस, फाइनेंशियल लॉस हो गया, इमोशनल लॉस हो गया, ब्रेकअप्स हो गया, किसी ने कुछ डांट लिया, आपको बुरा लगा। जब जब आपको बुरा लगा है, बहुत गंदा बुरा लगा है, मानो कि जब जब आपको लाइफ में बड़ा बुरा लगा है, एंड यू फील लाइक कि यार मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, और ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, व्हेन यू फील लाइक कि दैट इज स्टेट, क्यों एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इससे अच्छा तो मर ही जाओ। ये जब ऐसा ऐसा जब दिमाग में आया ना, क्या क्या मतलब है, मतलब मेरे मतलब सब लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, और यू फील लाइक कि मैं तो सब सही कर रहा हूँ, फिर भी मेरे Hmm. साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कई बार होता है, Hmm. हमको लगता है हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, still like people are not able to understand. Whenever you feel like people are not able to understand, you are trying your best, it is like कुछ तो इमोशनली चीज़ें गड़बड़ हो रही है, कुछ तो मतलब अनरिजॉल्व है, काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पाई। तो अवेकनिंग तब हो पाएगी जब, सो अवेकनिंग इसलिए नहीं हो पाती और ये रिजॉल्व इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि ईगो का पहाड़ बन जाता है। तो ईगो ऐसा पहाड़ बन जाता है कि आप भूल ही जाते हो टाइम के बाद, जैसे जैसे ग्रो अप होते हो, जैसे जैसे मनी कमाते हो, सक्सेस अट्रैक्ट करती है, और जितना सक्सेस मनी आएगा, ईगो और बड़ा होगा इवेंचुअली। और जैसा और वो ईगो और एम्पलीफाई होता है, क्योंकि ऐसे सर्कल में आप रहते हो, ऐसे लोगों से मिलना होता है, ऐसा लोगों से उठना बैठना होता है। तो दे मेक श्योर कि यू रिमेन इन द ट्रैप ओनली, दे मेक श्योर कि दिस इज हाउ द लाइफ वर्क्स बेसिकली। तो उस केस में क्या होता है कि ईगो का पहाड़ इतना बड़ा हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता उसके नीचे दबा क्या है। तो जब ईगो का पहाड़ टूटेगा, तभी जाके यू विल फील लाइक देयर इज समथिंग जो इसके अंडरनेथ है, और देन इट विल कम आउट बेसिकली। तो ईगो का पहाड़ टूटने के लिए, ईगो का पहाड़ एकदम से टूटेगा, वो ऐसे आराम से नहीं टूटता, एकदम से टूटता है, और वो टूटने तोड़ने का काम भी ऊपर वाला ही करता है, क्योंकि ऊपर वाले के बच्चे हो ना तुम। वो तो तुम्हारा अच्छा चाहता है, उसको पता है कि ठीक है तुम्हारे माँ बाप जो है वो भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं लीला के अंदर, माया के Hmm. अंदर फंसे हुए हैं, और सबका अपना अपना है, मतलब कोई किसी पे ब्लेम तो नहीं कर सकते, सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। बट उसको पता है मतलब कोर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऊपर वाले की है, गॉड की है, कि हम उसके बच्चे हैं, तो वो अपना ध्यान रखेगा, या अपने को मौका भी देगा कि सुधर जाओ। तो वो मानो कि वो अपने को मौका दे देता है कि ऐसा कुछ अपने लाइफ में हो जाता है जहाँ पे यू हैव नो कंट्रोल।
बिकॉज द होल आइडिया ऑफ ईगो इज टू हैव कंट्रोल ओवर लाइफ. तो ईगो बिल्डअप तब, जितना ज़्यादा ईगो बिल्डअप तब होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेगा लाइफ में आप कंट्रोल कर रहे हो, उतना ईगो आपका बिल्डअप होगा कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट. और जितना पैसा आएगा तो ऐसा आजकल सब बोलते भी ना, पैसा है तो सब कुछ है. हम्म. पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में. पैसा है तो लड़की भी आएगी, पैसा है तो गाड़ी भी आएगी, पैसा है हम्म. तो लोग भी आएंगे, दोस्ती भी हो जाएगी, सब कुछ पैसे से हो जाएगी. हम्म. तो अभी तो काफ़ी बाई डिफॉल्ट वैसा हो गया कि पैसा है तो लाइक वी हैव ओवर फुल कंट्रोल ओवर लाइफ. बीमार हो गए तो हॉस्पिटल जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. हम्म. तो बट यू हैव नो कंट्रोल ओवर डेथ ना ब्रो. यू हैव नो कंट्रोल ओवर डेथ. यू हैव नो कंट्रोल की you can also get manipulated, like so death is a subject, secondary subject. Death could happen sometimes. तो कई बार ऐसा होता है लोगों के जीवन में किसी की डेथ होती भी नहीं है, but manipulation तो keep going on. And it's like by human, while you are growing up, जब तुम छोटे बच्चे भी होते हो, you try to manipulate your parents also, and later on parents are trying to manipulate you. So it's a very core trait, you know, it's a very very core instinct कैसा कहो या हमारी core quality बोलो, हम ऐसे है, हमारी core property है वो manipulation करना. हम we keep on trying to manipulate other people for our own benefits, और they also trying to do the same. तो या तो तुम फंस जाओगे या वो फंस जाएंगे. हम्म. तो तुम अपने आप को कितना स्मार्ट समझो, कोई ना कोई तुमसे स्मार्ट है ही है. तो कभी ना कभी तो तुम फंसोगे. जब मैनिपुलेशन होता है तो हाँ, इमोशनल मैनिपुलेशन होता है एक्चुअल में. अब मैनिपुलेशन किसी ने कर दिया तो फंस गए, तो तब तुम्हारा कहने के ऐसा अंदर कुछ तो हिलेगा. और जब वो हिलेगा तो वहाँ से भी अवेकनिंग हो सकती है, वहाँ से भी हो सकता है ईगो डेथ हो जाए, क्योंकि उससे पहले तुमको लगता था तुम स्मार्ट हो. हम्म. बाद में तुमको पता लगा, यू फील लाइक यार मैं तो स्मार्ट था, मुझे इतना कुछ आता था, एक बंदा मेरे को पागल बना के चला गया, उसको मैंने उसको ट्रस्ट किया. यहाँ पे ट्रस्ट का बड़ा रोल आ जाता है. किसी ने किसी के ऊपर आपने ट्रस्ट किया, या फिर ट्रस्ट आदमी तभी करता है जब दिल से कनेक्ट हो जाता है, एग्जैक्टली. अदरवाइज करता नहीं है. हम्म. ब्लाइंड ट्रस्ट, मेनली हम्म. ब्लाइंड ट्रस्ट. तो किसी पे आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, उसने आपका ब्लाइंड ट्रस्ट तोड़ दिया, देन यू विल गो थ्रू दैट विंडो कि जहाँ पे दे विल बी ईगो डेथ. बिकॉज फिर आप खुद के ऊपर डाउट करोगे ना, देन द ईगो विल नॉट होल्ड ऑन. क्योंकि अब ईगो तो खत्म हो गया ना, क्योंकि आपको उसका तो ईगो था कि कोई आपको कोई चीट नहीं कर सकता. आप यू हैव कंट्रोल ओवर लाइफ. दैट इज वाई ऑलवेज थिंक कि अगर मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट भी करूँगा तो वो सही चलेगा, मतलब जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही होगा. बट वैसा हुआ नहीं. मतलब ईगो की डेथ हो गई. ईगो ने जैसा आपको बोला था वैसा हुआ नहीं. सो ईगो विल गो थ्रू ए टेम्परेरी डेथ in that moment. And if there is a extreme event like pain, you are going through extreme pain also. There are different kind of event, मतलब sometimes some events are very small, तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता. बट कोई ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट है जहाँ पे यू आर टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम इट. यू आर गोइंग थ्रू वेरी डीप फेज जहाँ पे यू आर नॉट एबल टू स्लीप, यू आर नॉट एबल टू फोकस. वही जो चीज़ें पास्ट की, वो सब चीज़ें बार बार दिमाग में चल रही है. ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं इससे निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ. यू ट्राई टू बिकम सो लेजी. You try to escape through alcohol, you try to escape through all kind of different substance, you try to have more food, have more sugar. मतलब अपने आप को वैसा कर रहे हो तुम पूरा. तो वो स्पाइरल रहता है. हाँ. सो इधर while you are facing all these problems you go into an upward spiral. हाँ. तुम रियलाइज करते हो कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, तो I have to do something right. You start changing your routine and you go into upward spiral. फिर लिबरेशन हो जाता है. और you go into a downward spiral जहाँ पे तुम रियलाइज मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं पीने लगता हूँ, अलग अलग नशे आते हैं. देन डेथ इज द लिबरेशन फॉर और मी. वो पॉइंट इतना मुश्किल है कि कई लोग उस पॉइंट पे जाते तो है, बट उनको वो आइस ब्रेक मोमेंट मिलता ही नहीं है. मतलब दे ऑल्सो रीड बुक्स, दे ऑल्सो रीड अ लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स ऑल्सो, वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशन भी लेते हैं. वो शॉर्ट टर्म होता है. मतलब जब बुक पढ़ लिया या फिर वीडियो पढ़ लिया तब तक रहेगा, फिर वो दे कांट रियली एक्ट. एक्शन मोड खत्म हो जाता है उनका. भैया मोटिवेशन इज द न्यू पॉर्न आई गेस, बिकॉज हाँ. एवरीवन वॉचेस इट ऑन रील्स. हाँ. तो वो एडिक्शन ही है. दिन भर तुम कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ मैं रील्स तो देखता हूँ, आई ओनली सी मोटिवेशनल रील्स. तुम भाई एक्शन नहीं ले रहे हो, एक्शन सिर्फ नहीं ले रहे. रील्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, रील्स तो देख रहे हो, वो रील्स देख रहे एडिक्शन ही है. वो इट्स लाइक कि इट्स अ कंफर्ट जोन, लाइक इट्स लाइक यू आर कंफर्टेबल विद दैट थिंग and you are just trying to fool you in a way कि हाँ मतलब something happened to you and now you're trying to motivate you yourself. It's a new loop basically. तो रोज वही मतलब there's a new food basically. There's a new sort of food you are taking. It is again a consumption, because content is consumption ना basically. So it's a consumption basically. Whatever you are consuming, it can become addiction. The more you consume, it can become a sort of addiction. And content consumption अगर आप 2-3 घंटे कर रहे हो तो addiction ही हो रहा है eventually. तो यहाँ पे एक्शन मोड इज मोर इम्पोर्टेंट. तो एक्शन तभी हो पाएगा जब ऐसा इन्वायरमेंट आपके अराउंड हो. आपका इन्वायरमेंट अगर ऐसा हो कि जहाँ पे यू आर डीलिंग विद द सेम पीपल, लाइक द ग्रुप इज स्टिल द सेम साइड, सेम प्लेस, सेम फ्रेंड सर्किल, सेम पेरेंट्स, सब कुछ सेम है, इन्वायरमेंट भी वो है.
तो कुछ नहीं हो पाएगा, तब एक्शन नहीं हो पाएगा। आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी, आपको लोग चेंज करने पड़ेंगे, आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा, मतलब चेंज करना बहुत जरूरी है, तब जाके एक्शन हो पाएगा, तब एक्शन नहीं हो पाएगा। तो द होल आइडिया ये इसकी अवेकनिंग, मतलब अवेकनिंग हो जाती है, बट अवेकनिंग के ग्लिम्स पहले आते हैं। अवेकनिंग तो दीज आर जस्ट ग्लिम्स ऑफ अवेकनिंग, कि जहाँ पे यू आर गोइंग थ्रू दिस सॉर्ट ऑफ, उसको डिप्रेशन भी लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन हो रहा है ब्रो, हैंडल नहीं हो पा रहा, बहुत इमोशंस, मतलब आई कांट रियली हैंडल, ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, किसी की डेथ हो गई, आई एम वेरी डिप्रेस राइट नाउ। सो इट्स ए फेस, बट इट इज़ नॉट ए कंप्लीट अवेकनिंग। कंप्लीट अवेकनिंग तो ऐसी हो गई कि you can't really even do anything about it. It's like हम्म, कि you can't do anything about जैसे it. डेथ ट्रैप मतलब हो तुम गया। खत्म हो गए। हम्म। It's like कि मतलब जो नॉर्मल जो एपिसोड होते हैं आपको, जहाँ पे यू फील वेरी इमोशनली हैवी और यू गो थ्रू इमोशनल टर्बुलेंस पीरियड, हम्म। तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है दैट इज लेस देन 0.1%। हम्म। यू आर ओनली डीलिंग विद सेलेक्टिव इवेंट हम्म। विच डिस्टर्ब योर इमोशनल हेल्थ, ऐसा मानो, उससे आपको डील करना है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे रिसेंटली हुआ है। हम्म। समझ गए? अवेकनिंग इज वॉट की पूरी लाइफ के अंदर जो इवेंट हुए हैं, जिसमें से कई इवेंट आप भूल भी चुके हो, हम्म। वो सारे अटैक करेंगे, जिनको आप याद भी नहीं करना चाहते। कई ऐसे इवेंट हमारी लाइफ के अंदर होते हैं जो 20 साल पहले हुए होते हैं, 30 साल पहले हुए होते हैं। यू ऑलवेज ट्राई टू फॉरगेट दोज इवेंट्स एंड यू यू फॉरगेट देम ऑल्सो, यू नॉट रियली रिमेंबर दैम। मेक श्योर कि कोई उनके बारे में बात ही ना करे। ऐसा कुछ आपके लाइफ के बारे में बहुत डार्क हो चुका है, बहुत डार्क हो चुका है, ट्रॉमा, बहुत डीप ट्रॉमा। हर इंसान के जीवन में ट्रॉमा होता है, हर इंसान के जीवन में ऐसे ऐसे ट्रॉमा होते हैं। Well, I will share one example. This is very like this is a face of society. Child abuse is very common in this हम्म। society. Both male kid, female kid. हम्म। ऐसे ऐसे अंकल होते थे, चाइल्ड को अब्यूज, मोलेस्ट भी करते थे, अब्यूज भी करते थे। हम्म। ऐसे ट्रोमा में आज भी, अभी मुझे पता नहीं आज की जनरेशन में क्या होगा, बट 90s के किड जो है आज भी इस टाइप की कुछ एपिसोड उनके दिमाग में है जो उनके साथ हो चुके हैं, उन्होंने कभी किसी के साथ शेयर भी नहीं किया। समझ गए? वो कितना डीप ट्रॉमा, कितना डीप बाउंड है। अब सोचो वो एपिसोड तुम्हारे दिमाग में रोज चलने लग जाए, समझ गया? हम्म। ऐसे एपिसोड जो तुम कभी कभी मतलब उसको अटेंड ही नहीं करना चाहते कि दिस इज, आई रियली डोंट वांट टू अटेंड दिस, दिस इज वेरी बैड थिंग, आई कांट अटेंड दिस, और वो तुम्हारे दिमाग में चले, बस क्या करोगे? हालत खराब हो जाएगी भाई। हालत खराब हो जाएगी। तो जब वो हालत खराब होगी तब आपकी अवेकनिंग होगी। मैंने ये स्टोरीज बहुत सुने हैं लोगों से। सी लकीली आई एम नॉट श्योर व्हाई पीपल एक्चुअली फील गुड टू शेयर थिंग्स विद मी। तो उन्होंने जब भी बोलते हैं वो लोग ऐसे बोलते हैं, किसी को बताना मत, ये हुआ था मेरे और पास। उन्होंने अच्छा कर दिया, उन्होंने बोल के अपने आप को रिलीज कर दिया, वो बहुत अच्छा काम है, हमको शेयर करना ही पड़ेगा। वी नीड टू शेयर दोज ऑल इवेंट्स विच यू आर नॉट pretty proud of, or which haunts you every day basically, which are very haunting episode of your life. There are couple of haunting episodes. बट इट्स वेरी क्रूशल टू सेलेक्ट द पर्सन You एज need वेल। to, हाँ, you need तो to. अगर मैंने किसी रैंडम इंसान को जाके ना, बोल you दिया can't do ये it. हुआ है, देन ही विल आल्सो हैव दैट आप बोल कि ही नहीं हाँ पाओगे, इसको मतलब एडवांटेज। पहली बात तो करेज भी आना चाहिए, करेज ही नहीं आएगा, मतलब you can't really share it like, वो काफी लंबे टाइम के बाद लोग शेयर करते हैं, करने वाले, और वो भी तब उनको ऐसा कुछ ऐसा फील होता है, कनेक्ट फील होता है कि हाँ ही कुड अंडरस्टैंड मी, वो अंडरस्टैंडिंग वाला फील होता है कि हाँ ये मैं बताऊंगा तो ही वॉन्ट जज मी, जजमेंट वाला विंडो खत्म हो जाना चाहिए। उस केस में यू कैन, बिकॉज पीपल आर जजिंग ना ब्रो, हम कैसे शेयर करेंगे, लोग तो जज करते हैं। ये दिक्कत है, सोसाइटी सो जजमेंटल, इसलिए कई चीज़ें नहीं हो पाती। तो अवेकनिंग में वैसा होता है कि जो भी अंदर जो कब्र है इमोशंस की, वो सारी बाहर आ जाती है, फट के बाहर आ फट जाती के बाद ब्लास्ट हो जाता है वो। है। तो ब्लास्ट हो जाता है, यू कांट रियली मैनेज इट। तो ब्लास्ट होता है तो बहुत इंटेंसिटी के साथ होता है, लाइक यू बिकम रेस्टलेस, you stop eating food, you stop having water, you won't need anything to survive. मतलब it's like कि वो मतलब दिमाग में वही चल रहा है, मतलब और कुछ थॉट ही, देखो आप खाना कब खाओगे जब कोई और थॉट आएगा ना भाई, आपको भूख ही नहीं लगेगी, वो तो आपको सेंसेस बोल रहे हैं ना कि आप भूख लगी खाना खा लो, मन को बोल रहे हैं, मन बोला चलो खाना खा लेते हैं, सारा बंद हो जाएगा, सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, खाली एक ही चीज चलेगी, वही लूप चलेगी। अब यहाँ पे अगर आपको सही सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है, यू कैन गो मैड ऑल्सो, है ना? और वो जब जब चीज़ें बार बार इतनी चलने लग जाती है, जो चीज़ें आप अवॉइड करना चाहते हो, तो ये जो मन है वो बहुत अलग टाइप से खेलता है। वो उस जो आपका पास्ट है उसको विजन के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट भी कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल यू लॉस्ट समबडी,
जिनको तुम बहुत प्यार करते थे एग्जाम्पल के लिए, and you really wanted to get yourself away from those memories since a long time because you feel very sad about it. बट जब अवेकनिंग होगी और वो मेमोरी वापस एक्टिवेट हो जाएगी और वो आपको अटैक करेगी, तो हो सकता है कि मन ऐसा प्ले करे कि आपको विजन आ जाए उनके सामने, फील लाइक ए रियल पर्सन। तो पागल हो गया ना भाई, मेंटली कुछ शिफ्ट हो गया तुम्हारा, ये भी हो जाता है। लोग फिर कई लोग इस टाइप से पागल भी हो जाते हैं। अवेकनिंग के बाद कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि they start hearing voice also, they start seeing images also, people also around them, and they lost this ability to even differentiate what is real. Then you become mad, na? You can't really judge ki what is Differentiate. real, what is fake. You can't really differentiate. So you go through through that stage, and I think ये तो मतलब you will go through with stage. अवेकनिंग के बाद अगर आपको सीरियस अवेकनिंग हुई है, ऐसा स्टेज आएगा कि हर बंदा आपको वैसा लगेगा, दुनिया में हर इंसान ऐसा लगेगा कि ये आदमी बराबर नहीं, हर इंसान की नेगेटिव साइड आपको अट्रैक्ट करेगी ऐसा लगेगा, क्योंकि वो डार्कनेस आपके सामने आती है तो आपको भी डार्क बना लेती है, वो डार्कनेस ही अट्रैक्ट करती है। जो डार्कनेस बाहर आई है वो डार्कनेस ही अट्रैक्ट करेगी, जो भी डार्कनेस जहाँ पे नेगेटिव फोर्सेस है या नेगेटिव क्वालिटी लोगों की होगी, आप उससे ही अट्रैक्ट करोगे, वही हिट करेगी आपको। सब कुछ आपको बड़ा नेगेटिव लगेगा, आपको लगेगा कि यार दुनिया ख़राब है, मतलब तो सुसाइड भी लोग करते हैं अवेकनिंग के बाद, या कई लोग पागल हो जाते हैं, वो मतलब इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं, दे कांट रियली हैंडल इट कि व्हाट इज दिस थिंग ऑल अबाउट। एक मिनट भैया।